गुड मॉर्निंग एवरीबडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, क्लास हो गई है जी स्टार्ट। सो ਮੋਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਯੂਰ ਓਨ ਚੈਨਲ ਰਾਈਟ ਔਨ ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜੋ ਕਲਾਸ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫॉर ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਸ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆਪਾਂ 55 ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਲਾਈਕ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਲਾਸਿਸ, ਟੌਪਿਕਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪਲੇਲਿਸਟ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆਪਾਂ 100 ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਦ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਨੋਟਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਈ ਵਿਲ ਐਡ ਦ ਲਿੰਕ ਇਨ ਦ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਫॉर ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੋਟਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨੋਟ ਅਬਾਊਟ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਚਲੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਲ 55th ਕੁਐਸਚਨ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ 56 ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ, ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਜੂਗੇਟ, ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਪੀ ਓ ਕਿਊ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀ ਜੋ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜ਼ੈਡ, ਮਤਲਬ x ਪਲਸ ਆਈਓਟਾ ਵਾਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸ ਵਾਈ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ੈਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ x ਪਲਸ ਆਈਓਟਾ ਵਾਈ ਪਲਸ ਆਈਓਟਾ x ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ x ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਐਂਡ x ਪਲਸ ਵਾਈ। ਸੋ ਇਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ x ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਐਂਡ x ਪਲਸ 1। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਥੋੜਾ ਡਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਓਰੀਜਨ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਕਸ ਹੈ, 0 0 ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਕਸ ਵਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਐਂਡ ਐਕਸ ਪਲਸ ਵਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਓ ਪੀ ਕਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇ ਆਰ ਟੋਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਓ ਪੀ ਕਿਊ, ਮਤਲਬ ਦੇ ਆਰ ਟੋਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਐਂਗਲ, ਇਸ ਐਂਗਲ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ O ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 0 0। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, जो P पॉइंट है दैट इज X एंड Y एंड जो Q पॉइंट है दैट इज 1 मिनट जी, जो Q पॉइंट है दैट इज X माइनस वाई एंड X प्लस वाई, X माइनस वाई एंड X प्लस वाई, इदा करके 3 पॉइंट्स दिते हुए हैं। ठीक है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਜੇਕਰ ਮੈਨੇ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਸਲੋਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਲੋਪਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ OP ਦੀ ਸਲੋਪ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ PQ ਦੀ ਸਲੋਪ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂ। ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ M1 ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ M2 ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਸਲੋਪ ਆਫ OP ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਲੋਪ ਆਫ OP मेरे को स्लोप कितनी होगी। ठीक है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 विच इज इक्वल टू y अपॉन x, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ OP ਦੀ ਸਲੋਪ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈंने ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, M1 ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਲੋਪ ਆਫ PQ, ਸਲੋਪ ਆਫ PQ मतलब y माइनस y1 विच इज x प्लस y जी, विच इज x प्लस y माइनस y अपॉन x माइनस वाई
माइनस एक्स, ठीक है। सो वाई नाल वाई कैंसल, एक्स नाल एक्स कैंसल, मेरे को कितना आ गया माइनस एक्स अपॉन वाई आ गया विच इज़ माई m2, ठीक है। वैसे तो जेकर ये स्लोप्स इस फॉर्मेट ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं आंदियां फिर ਤੁਸੀਂ tan थीटा वाला स्लोप वाला फॉर्मूला लगाते, पर मैनू एक गल हमेशा इतनी क्लीयरली नज़र आ रही है कि जेकर मैं दोनों स्लोप्स की मल्टीप्लाई कर रही हाँ, जेकर मैं दोनों स्लोप्स की मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे को -1 आ रहा, प्रॉपरली नज़र आ रहा होएगा तो हाँ, ठीक है जी। जेकर मैं दोनों स्लोप्स की मल्टीप्लाई कर रही हाँ तो मेरे को -1 आ रहा, और दोनों स्लोप्स की मल्टीप्लाई करके -1 कदों आता है जो तुहाडे कोल एंगल कितना होंदा 90 डिग्री, मतलब जो दोनों लाइनस आपस दे विच की होंदियां ने परपेंडिकुलर होंदियां ने। दैन क्लीयर जी गल है, इत्थे तुहाडे कोल विच ऑप्शन इज राइट, सी। किहड़ी ऑप्शन राइट हो जानी है, सी ऑप्शन राइट हो जानी है। सो इत्थे तुहानू ज्योमेट्री नू नाल लैना पऊगा, ठीक है जी, क्लीयर है। अगे चलते हाँ क्वेश्चन नंबर 57 के उपर। 57 क्वेश्चन तुसीं देख पा रहे हो प्रॉपरली, इहदे विच आपां नू 3 नंबर दिते हुए हैं, ठीक है जी। इहदे विच आपां नू की दिते हुए हैं 3 नंबर दिते हुए हैं, और 3 नंबर दे विच इन्हां ने कहा कि दसो ये 3 जिहड़े नंबर ने जां 3 पॉइंट्स ने, सॉरी नंबर नहीं पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स ने जिहड़े ओह आर्गन प्लेन दे ने, ठीक है। सॉरी आर्गन प्लेन दे विच एक राइट एंगल बनाते हैं, कोलिनियर ने, या फिर अपट्यूज एंगल दे वर्टिसेस ने, ठीक है, या फिर अपने कोल इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सो ये सारी चीज़ां आपां दसनी है कि किहड़ा इन्हां दे विच एक राइट आंसर होगा। हुण देखो ये जिहड़े पॉइंट्स ने, पहला उन्हां पॉइंट्स नूं देख लैंदे आ, ठीक है। ये पॉइंट्स हैगे किहड़े ने, ये पॉइंट्स अपने कोल फर्स्ट पॉइंट आपां नूं दित्ता होया 1 एंड 3, सॉरी सैकेंड पॉइंट आपां नूं दित्ता होया 5 एंड 1, थर्ड पॉइंट आपां नूं दित्ता होया 3 एंड 2। मतलब तुसी कुछ नहीं करना, ये सिर्फ कॉम्पलैक्स फॉर्मेट दे विच दिता होया, करना आपां उवें ही जिवें आपां करदे हुंदे आ। किवें करदे हुंदे आ, ज्योमेट्री नूं यूज़ करो, ज्योमेट्री नूं यूज़ करके दसो कि ये जो फॉर्मेट तुहानूं दिता होया, ये जो पॉइंट्स तुहानूं दिते हुए ने, ये पॉइंट्स की रिप्रजेंट करते हैं, सिंपल, ठीक है। सो देख लो जी विच ऑप्शन इज़ राइट है, और उस अकॉर्डिंग अपना आंसर आ जाऊगा। तीनों ही पॉइंट्स तुहानूं दिते हुए हैं एंड उस अकॉर्डिंग देखो बस, ठीक है। सो बस एरिया ऑफ ट्रायंगल कढ़ लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल कढ़ के तुहानूं पता लग जूगा, ठीक है, कि चीज़ है अपने कोल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कढ़ो, अपने कोल कितना आ जाएगा 1 3 5 1 3 2 1 1 1 एंड सोल्व करो इसनूं थोड़ा बहुत, अपने कोल कितना आ जाएगा 1। मैं R2 दे विचों R1 माइनस कर रही हूँ तो मेरे कोल आ जाएगा 1 -2 0। सिमिलरली मैं R3 दे विचों भी R1 नूं माइनस कर रही हूँ तो मेरे कोल आ जाएगा 0। एक्सपेंड कर दो, कितना हो जाएगा -4 + 4 = 0। मतलब एरिया ऑफ इत्थे 1/2 भी आऊगा, स्टिल उहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा क्योंकि सारा ही 0 बन गया = 0। अगर मेरे कोल एरिया ऑफ ट्रायंगल = 0 आ गया तो तुसी आप ही समझदार हो सारे कि ये तीनों पॉइंट्स मेरे कोल की होंगे जी, कोलिनियर होंगे, ठीक है। अगे चलते हैं नैक्सट वन Z1 एंड Z2, ठीक है। Z1 तो Z2 दो कंपलैक्स नंबर ने, दैन मेरे को Z1 + Z2 का मोड कि इक्वल होगा, तो बिल्कुल ये आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी दे विच पढ़िया सी कि Z1 + Z2 का जो मोड है दैट इज़ <= Z1 + Z2, एंड जेकर मेरे को Z1 - Z2 का मोड है दैट इज़ > Z1 - Z2, ठीक है। सो तुसी आप ही देख लो विच ऑप्शन इज़ राइट हेयर, <= Z1 + Z2, मतलब ए ऑप्शन इज़ राइट हेयर, ठीक है। अगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के उपर। 59 क्वेश्चन दे विच की है, Z दिता होया द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, कहते एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करो जिहदे वर्टिसेस मैनू आ दिते हुए हैं। एक पहला वर्टिसेस मेरे को की है, लेट देयर इज़ अ ट्रायंगल, ये मेरे को कोई भी एक पर्टिकुलर जो ट्रायंगल है, ये पहला वर्टिसेस है XY मतलब Z, ठीक है। दूसरा वर्टिसेस है आयोटा Z, आयोटा Z का मतलब की हो गया Y एंड X। देखो आयोटा Z की वैल्यू जो तुम कढोगे तो कितना आ जाएगा आयोटा X - Y, ठीक है, आयोटा X - Y। सो इत्थे मेरे को -Y एंड X होएगा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सो नैक्सट अगर आप गल करिए, नैक्सट मेरे को हो जाऊगा, सॉरी आयोटा स्केयर, एंड थर्ड तो तुसी आपां कढ के ही आए हैं दैट इज़ X+ एंड X-, ठीक है। सो ये मेरे को होएगा X - Y एंड अगला पॉइंट केड़ा होगा X + Y। 3 पॉइंट्स दिते हुए हैं, 3 पॉइंट्स का एरिया कढ़ना है, तो एरिया कढ़ना जी आंदा है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, और इत्थे मेरे को कितना आ जाएगा 1 1 1। सो फर्स्टली तो 0 0 0 बना लो, 0 0 0 किमें बनाओगे, देखो मेरे को कितना बन गया, इधर कर लेने थोड़ा सॉल्व। मेरे को फर्स्ट रो तो इदा ही रहेगी, मैंने इतने की किया R2 - R1 किया तो 0 बन गया, R2 - R1 करोगे इतने X - Y बन जूगा, और इतने -Y - X आ जूगा, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
तो इतने मेरे को R3 माइनस R1 कर दो, R3 माइनस R1 करोगे तो इतने x रह जाएगा और इतने मेरे को माइनस y रह जाएगा। सो इसमें इस अकॉर्डिंग की कर दो, एक्सपैंड कर दो। एक्सपैंड करके देखो थोड़े को कितना बच गया, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो ये आपस की हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे एंड फिर थोड़े को आंसर आ जाऊगा। देख लो जी कितना आंदा है, और मोरे 1/2 जरूर आऊगा। सो मोरे 1/2 जरूर रखो, ठीक है। R2 माइनस R1 कितना ना, x माइनस वाई माइनस एक्स, ठीक है, एंड x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, माइनस एक्स। अच्छा ठीक है, इतने माइनस हो जाऊगा, ठीक है। सो मेरे को कितना आ जाएगा, माइनस कॉमन काट लो, पिछे रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। तो क्लीयर जी गल है, मेरे को कितना बन जाएगा, मोड है, ठीक है, जिद करके नैगेटिव होएगा नहीं। तो क्लीयर जी गल है, मेरे को कितना हो गया 1/2 मोड Z स्क्वायर हो गया, ठीक है जी, क्लीयर है। चलो तो देखो कि ऑप्शन राइट हो जाता है, बी हो जाता है। मैंने लगता माइनस नहीं आऊगा, मैं थोड़ी बहुत कितनी कैलकुलेशन कर दी है, ठीक है। आप दोबारा चेक कर लेने हैं। मेरे को फर्स्ट पॉइंट कितना सी एक्स वाई सीगा, आयोटा Z जो तुम कढोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स के नाल आयोटा लग जाएगा और वाई के नाल की हो जाऊगा, माइनस हो जाऊगा, ठीक है। सो मेरे को पॉइंट कितना आ जाऊगा, माइनस वाई एंड प्लस एक्स, माइनस वाई एंड प्लस एक्स, बिल्कुल यही लिखा से मैं। थर्ड पॉइंट मेरे को होएगा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है, बिल्कुल। तो कोई इतना फर्क नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है। विच ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट, बाकी थोड़ा बहुत होगा वो तुम देख लियो, आराम नाल हो जाना है, ठीक है। 60th क्वेश्चन देखो, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मड बाय, कहते इन्होंने 3 पॉइंट्स तो की बनया एरिया ऑफ ट्रायंगल बनया, कहते हो कि है ना 18 है, कितना है 18 है। अगर वो 18 है तो दसो कहते ये मोड ऑफ Z कितना होगा। हम देखो ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल सेम ने, एक Z है, एक Z प्लस आयोटा Z है और एक आयोटा Z है। तो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ये मेरे को किन्ने आया सी, 1/2 मोड Z दा स्क्वायर आया सी। सो इन्हें सॉल्व करने की लड़ नहीं, तुम प्रीवियस क्वेश्चन के सॉल्व करके आए हो। इन्होंने मोड Z की वैल्यू पूछी है, तो मोड Z की वैल्यू मेरे को कितनी आ जानी है जी, Z मोड कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, नेगेटिव हो नहीं सकता। सो विच ऑप्शन इज राइट हियर, ए ऑप्शन इज राइट हियर, ठीक है। अगे चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 61st क्वेश्चन देखो की है, दो पॉइंट Z मूव ऑन आर्गन डायग्राम इन सच अ वे, कहते एक Z जो है उसका लोकस फाइंड आउट करना है इन सच अ वे, मेरे को आ चीज़ बने, ठीक है। सो इसका लोकस दसो, कहते की होएगा, वाई एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, जो भी इन्होंने फाइंड आउट करने कहा वो होएगा, ठीक है। हुण ये अपने कोले जो है दैट इज Z माइनस 3 आयोटा, की दिता होया आपां नूं Z माइनस 3 आयोटा, बस इसनूं सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आंसर आ जाऊगा, ठीक है जी। सो Z माइनस 3 आयोटा नूं किवें करोगे, पहली गल तो Z है कि एक्स प्लस आयोटा वाई, और इस विचों माइनस की करना है 3 आयोटा इज अ मैग्नीट्यूड, इज अ मैग्नीट्यूड कितना होएगा, रियल पार्ट द स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट द स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट कितना है y माइनस 3 द स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2, बोथ साइड के ऊपर स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है जी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो एक चीज़ तो थोड़ा प्रॉपरली नज़र आई गई होनी कि यह वाई एक्सिस या स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, ऑब्वियसली यही की है, एक सर्कल है। सो विच ऑप्शन इज राइट हेयर, सी ऑप्शन इज राइट हेयर। क्वेश्चन नंबर 62 जो क्वेश्चन है वो की किया होया, आर्गूमेंट ऑफ दिस कॉम्पलैक्स नंबर Z माइनस ए, और मैंने कितना दिता होया π/4 दिता होया, ठीक है। सो ਇਹਦਾ मैंने की करना है, लोकस फाइंड करना है। सब तो पहले तो Z माइनस ए मेरे को किदा दा नंबर होगा, दैट इज लाइक एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस ए, मतलब ਇਹਦਾ रियल पार्ट कितना हो गया, एक्स माइनस ए हो गया, और कंपलैक्स ਇਹਦਾ जो इमेजनरी पार्ट हो गया दैट इज आयोटा वाई, ठीक है। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है कि ਇਹਦਾ आर्गूमेंट मैंने दिता होया, ठीक है, इसका आर्गूमेंट मैंने कितना दिता होया है, π/4 दिता होया। अगर तुम इसका आर्गूमेंट फाइंड करोगे दैट इज tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है, विच इज इक्वल टू π/4। तो क्लीयर जी गल है, tan π/4 की वैल्यू कितनी होंगी है जी 1 होंगी है। सो मैं सीधा इसनूं ये चीज़ लिख सकती हाँ, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस ए आ गई। नाउ यू कैन ईजिली से दिस इज नॉट अ पैराबोला, दिस इज नॉट अ हाइपरबोला, दिस इज नॉट अ इलिप्स, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। सो ये स्ट्रेट लाइन है तो तुम आप ही देख लो विच ऑप्शन इज राइट हेयर, डी ऑप्शन इज राइट हेयर। चलिए आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 63rd क्वेश्चन देखो कि दिता होया, कहते जेकर Z माइनस Z स्क्वायर माइनस 1, ये दिता होया आपां नूं Z स्क्वायर माइनस 1
जी z स्केयर -1 इज इक्वल टू z स्केयर +1 ਦੈਨ z ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ z ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਇਲਿਪਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੇਗਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੇਗਾ ਇਮੇਜਨਰੀ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੇਗਾ ਦੇ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਮੇਜਨਰੀ ਐਕਸਿਸ ਮਤਲਬ x ਐਕਸਿਸ ਔਰ ਰੀਅਲ ਐਕਸਿਸ ਮਤਲਬ y ਐਕਸਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨੋ ਡਾਊਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ z ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ x + i/y ठीक है सो इतने आप लै लैंने z स्क्वेयर z स्क्वेयर करोगे तो थोड़े कोल कितना हो जाएगा x + i/y नूं तुसीं x + i/y दे नाल मल्टीप्लाई करनी है तो थोड़े कोल बनेगा a स्क्वेयर - b स्क्वेयर + 2a/, ठीक है सो इतने भी मैं वही चीज़ डायरैक्टली लिख रही हाँ दैट इज़ a स्क्वेयर ठीक है 1 भी मैं इधर ही ले आई एंड +2 ताकि मैं इमेजनरी पार्ट पहले ही इकट्ठा कर ला और जो अपने को रियल पार्ट होएगा वो अलग होएगा ठीक है 2xy आयोटा ठीक है जी कितने होएगा प्लस दे विच होगा ठीक है चलो अगे मेरे को इधर कितना है मोड z का स्क्वायर मतलब x + y स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू +1 ठीक है सो आ सारी चीज़ आ गई मेरे को सो एदा अगे मैग्नीट्यूड है तो मतलब मैनू की करना पऊगा स्क्वायर करना पऊगा ठीक है स्क्वायर कर लेने दोनों साइड के उपर ताकि इस दे विच रूट ना आवे तो मेरे को कितना बन गया x स्क्वायर - y स्क्वायर -1 दा होल स्क्वायर ठीक है और प्लस इत्थे मेरे को कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर विच इज इक्वल टू एदा भी मैनू की करना पऊगा स्क्वायर करना पऊगा x स्क्वायर + y स्क्वायर +1 द होल स्क्वायर ठीक है हुण ये सारा कुछ तुहाडे सामने है इनू जो तुसीं इवैल्यूएट करोगे ओपन करोगे ठीक है मेरे को कितना बन जाएगा a⁴ वैसे तुसीं इत्थों ही अंदाजा लगा सकते हो बट स्टिल इसनू सॉल्व करना पऊगा होर कोई इहदे विच मैथड नहीं है सो यही करना पऊगा a⁴ a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर ठीक है जी और -2ab -2ab -2ac -2ac एंड इतने मेरे को प्लस हो जाएगा 2 बारी माइनस आ जाएगा तो 2bc ठीक है जी तो ये चीज़ मेरे को बनेगी ठीक है नेक्स्ट अगर आप गल करिए 2x स्क्वायर y स्क्वायर -2x -y स्क्वायर और +4x स्क्वायर y स्क्वायर और सिमिलरली इधर मेरे को ओपन होएगा a स्क्वायर ठीक है b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc एंड 2c सॉरी जी 2bc एंड 2ca तो हम देख लो ये की कैंसल होंगे है की कैंसल नहीं होंगे देखो x की पावर 4 y की पावर 4 तो क्लीयरली मैंने नज़र आ रहे हैं कि कैंसल हो जाएंगे 1b कैंसल हो जाऊगा ठीक है हम देखो -2x स्क्वायर y स्क्वायर इतने है +2x स्क्वायर y स्क्वायर सारा कुछ एक साइड पर ले आने तो मेरे को बन जाएगा ये चीज़ बन जूगी ठीक है और -2x स्क्वायर ये भी इधर आके कितना हो जाएगा -4x स्क्वायर हो जाएगा ठीक है ये भी मेरे को की हो गया मैं इधर नूं ले आई ठीक है जी और y स्क्वायर वाली चीज़ y स्क्वायर वाले नाल कैंसल हो जाएगी प्लस मेरे को कितना है 4x स्क्वायर y स्क्वायर है ठीक है और इज इक्वल टू मेरे को कितना रह जाएगा 0 रह जाएगा ये आपस के कैंसल हो गए तो कुल मिला के कितना बच गया मेरे को 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मतलब कहना की है x इज इक्वल टू 0 बच गया ठीक है x इज इक्वल टू 0 आ गया अगर मेरे को x 0 है तो तुम कहोगे कि मेरे को किहड़े एक्सिस के उपर लाई करता है y एक्सिस के उपर लाई करता है ठीक है तो काली काली के रियल एक्सिस ना लगा दियो x की वैल्यू तो 0 ही है अगर x की वैल्यू 0 है तो अपने को किहदे उपर लाई करूगा y एक्सिस के उपर लाई करूगा सो विच ऑप्शन इज राइट हेयर बी ऑप्शन इज राइट हेयर अगे चलते हाँ क्वेश्चन नंबर 64 के उपर ये मैंने दिता हुआ है z ठीक है एंड ओमेगा इज अ कंपलैक्स नंबर जो तो सामने है कुछ इस तरीके का नंबर है इट इज़ 1 - z आयोटा अपॉन z - आयोटा ठीक है और कहते जो तुम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे तो मैग्नीट्यूड थोड़े को इक्वल आऊगा 1 के इक्वल आऊगा शो दैट द कंपलैक्स शो दैट मतलब यही कि होएगा z इमेजनरी एक्सिस के उपर है रियल एक्सिस के उपर है ठीक है ये सारा कुछ थानू दिता हुआ है कि यूनिटरी सर्कल बना रहा है ठीक है या फिर अपने को की है नन ऑफ दिस हुण क्योंकि अपने को यह वैल्यू कि है ओमेगा की वैल्यू है ठीक है तो यदा मॉडुलस कितना है 1 है तो मतलब ये की कहना चाहते हैं ये कहना चाहते हैं कि जो तुम इसका मॉडुलस करोगे z - आयोटा का मॉडुलस करोगे तो थोड़े को कितना आऊगा जी 1 आऊगा ठीक है तो यदा मतलब मैं ये गल कह सकती हूँ कि 1 - z आयोटा का मॉडुलस जो है जी 1 - z आयोटा का जो मॉडुलस है दैट इज z - आयोटा का मॉडुलस ठीक है जी ये दोनों आपस की हो गए इक्वल हो गए बस इसनू ही कर लो सॉल्व करके थोड़े को आंसर आ चुका थानू पता है कि कंपलैक्स नंबर कुछ इस फॉर्मैट के है सो बस फिर कर लो सॉल्व देखो
अपने कोल कितना बन गया z आयोटा है ना, z आयोटा कितना कितना हो जाऊगा थोड़े कोल x आयोटा माइनस y, मतलब मेरे कोल कितना हो गया मोड दे विच 1 माइनस x आयोटा प्लस y, क्योंकि माइनस अंदर चला जाऊगा, ठीक है जी, इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा, ठीक है जी, ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड। ਹੁਣ दोनों साइड से पहले स्केयर कर लो ताकि रूट वाला कोई कन्फ्यूजन होवे ही ना। तो अपने कोल कितना बच गया 1 प्लस वाई दा होल स्केयर, 1 प्लस वाई दा होल स्केयर, इतने मेरे कोल कितना आ जाएगा प्लस इमेजनरी मतलब विच इज एक्स स्केयर, इतने भी मेरे कोल कितना बच गया एक्स माइनस 1 दा होल स्केयर प्लस वाई दा स्केयर। तो स्केयरिंग कर लो दोनों साइड से ए स्केयर बी स्केयर 2ab एंड इतने मेरे कोल कितना बच गया ए स्केयर बी स्केयर 2ab, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हूँ इदा लग रहा होना कि होर कोई मैथड नहीं है जो थोड़ा लेंदी है जो ये है वो है, नहीं तो इनू इदा ही करो, ठीक है, वधिया तरीके नाल थोड़ा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका। तो तुसी आप ही देख लो मेरे को कितना आ गया, मेरे को आ गया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ओके रुको, और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, इतने 2x ही बनेगा, इतने 2y ही बनेगा, है ना, इतना फिर गड़बड़ हो गया। उम्मीद है मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की थी। मेरे को कितना बन गया एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस वाई स्क्र प्लस 2y, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू 2y। ओके सॉरी हेयर इज आयोटा, ठीक है, ये आयोटा है तो मैं इतने थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर गई, तो इनू रखो एक बारी 1 मिनट, हाँ जी, क्योंकि अपने को आयोटा है सो मेरे को इतने y माइनस 1 दा होल स्क्वायर होएगा, ना कि मेरे को x माइनस 1 दा होल स्क्वायर होगा। सो इतने मेरे को x स्क्वायर माइनस 1 दा होल स्क्वायर, ठीक है। सो क्लीयर जी गल है, सारा कुछ सेम बनेगा, बस इतने मेरे को 2y आ जाऊगा। और इतों तुम कह सकते हो कि मेरे को सीधी सीधी y की वैल्यू की आ गई 0 आ गई। अगर मेरे को y की वैल्यू 0 आ गई दैन ऑब्वियसली थोड़ा z कि ऊपर लाई करूगा, रियल एक्सिस के ऊपर लाई करूगा, रियल एक्सिस के ऊपर लाई करूगा, मतलब विच ऑप्शन इज राइट हेयर, बी ऑप्शन इज राइट हेयर। अगे देखो क्वेश्चन नंबर 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ w ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ w ਓਮੇਗਾ ਨਹੀਂ w ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1 ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੱਢੋ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ z upon z minus 1 upon 3 ਆਇਓਟਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰੋ 65th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, अपने एक रिजल्ट पढ़िया सी कि z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इज अ मैग्नीट्यूड इफ दिस इज इक्वल टू 1 तो यह किनू रिप्रजेंट करूगा, स्ट्रेट लाइन रिप्रजेंट करूगा। अगर दिस इज नॉट इक्वल टू 1 तो यह किनू रिप्रजेंट करूगा, सर्कल रिप्रजेंट करूगा, 1 तो इलावा कुछ भी होवे। और इन्ना याद रखना है कि यह जो वैल्यू है इट कांट भी नेगेटिव, के ला लो है ना, के कांट भी नेगेटिव, ये नेगेटिव हो नहीं सकता। तो हम देखो इतने तो मैंने बनया बनाया फॉर्मेट दे दिता इन्होंने z अपॉन z, मतलब इतने मान लो z1 की वैल्यू 0 है और z2 मेरे को एक कंपलैक्स नंबर है, तो ऑब्वियसली ये मेरे को कितना बन गया, स्ट्रेट लाइन बन गया। क्यों, ये सारा कुछ किहदे इक्वल है 1 दे इक्वल है, तो कुछ करने की लोड़ ही नहीं पई आपां नूं, ठीक है। अगे देखो क्वेश्चन नंबर 66 से जो क्वेश्चन है उस की पूछा होया, कहने एक्स आर की वैल्यू थानू दी हुई है कोस पाई अपॉन 2 दी पावर आर प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 पावर आर, ठीक है जी। और इस मैंने पूछा होया दैन x1 x2 अप टू सोन x इनफिनिटी कितना होगा, ठीक है। तो सब दी मल्टीप्लाई है, सबनों मल्टीप्लाई करना पऊगा, ठीक है। हुण जेकर तुसी x1 की गल करो, x1 मेरे को कितना आ गया, ठीक है, इतने मेरे को बन गया कोस पाई अपॉन 2 प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2, ये मेरे को कितना बन गया साइन पाई अपॉन 2 कोस पाई अपॉन 2, ये मेरे को बन गया आयोटा, ठीक है जी। मतलब x1 की वैल्यू कितनी आ गई, आयोटा आ गई। क्लीयर जी गल है। नैक्सट अगर आप गल करिए, हुण जरूरी नहीं है थोड़े कोल कला मतलब वही होवे 1 ही होवे, ठीक है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो आपां की करते हैं सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा कर लैने, ठीक है, सारिਆਂ ਨੂੰ की कर लैने इकट्ठा कर लैने। देखो ध्यान अपने कोल जो है इत्थे इत्थों करते हैं आप स्टार्ट जी। अपने कोल जो है की फॉर्मेट बनूगा, अपने कोल बनूगा कोस पाई अपॉन 2 प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2
एक ये बनेगा, एक बनेगा, इनू एक ब्रैकेट दे विच रखो, एक मेरे को बनेगा कोस पाई अपॉन 2 द स्क्वायर, ठीक है, आयोटा साइन पाई अपॉन 2 द स्क्वायर, ठीक है। फिर मेरे को 3 वाला बनूगा, 4 वाला बनूगा, ऐदा करते करते मेरे को लास्ट वाला केड़ा होएगा, आर्थ होएगा, ठीक है, कोस ਜਿਹੜਾ है पाई अपॉन 2 आर्स टू द पावर एन एंड आयोटा साइन पाई अपॉन 2 पावर आर, ठीक है। हुण तुसीं सारिਆਂ ਨੂੰ तुसीं सारे जाने जानते हो कि जेकर मैं सिस थीटा 1, ठीक है, इंटू सिस थीटा 2 करा तो एंगल्स का की हो जाता हुंदा है, याद करो आप प्रॉपर्टी करी सी, सिस थीटा 2 करा मल्टीप्लाई दे विच तो मेरे को एंगल्स का की हो जाता हुंदा है, ऐड हो जाता हुंदा है, ठीक है। तो ये भी तो मेरे को सिस ही है, ठीक है, ये भी मेरे को सिस है। अप टू सोन किन्ने वारी है, आर वारी है, तो मैं सीधा सीधा लिख सकती हाँ कि कोस पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 2 स्क्वायर अप टू सोन पाई अपॉन 2 दी पावर आर प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 स्क्वायर अप टू सोन पाई अपॉन 2 पावर आर। मैंने की किया सारिਆਂ ਨੂੰ इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इकट्ठा कर लिया, कंबाइन कर लिया, ठीक है, क्योंकि इदा तुम किन्ने फाइंड करोगे, 1 कर लोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, है ना, अप टू इनफिनिटी जाना है आप। तो हम देखो इतने भी मेरे को की बन रही है, ये भी मेरे को जीपी बन रही है और ये भी मेरे को जीपी बन रही है, दोनों के उपर जीपी वाला की लगा दो, मैथड लगा दो, ठीक है। दोनों उपर जीपी वाला मैथड लगाओगे तो थोड़े को कितना बनेगा जी, इतने कर लेने आप क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरे को इतने बनेगा कोस ए अपॉन इनफिनिटी तक जीपी जाती है तो आप उत्थे लगाने ए अपॉन 1 माइनस आर, ए की वैल्यू कितनी है पाई बाय 2 अपॉन आर की वैल्यू भी कितनी है पाई बाय 2, ठीक है, क्लियर है। नहीं, आर की वैल्यू है अपने को पाई 1 बाय 2, सॉरी 1 बाय 2, ठीक है, प्लस आयोटा इंटू साइन, ए की वैल्यू कितनी है पाई बाय 2, आर की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 1 बाय 2। तो सोल्व करके मेरे को इत्थे तक कितना आ गया, इत्थे मेरे को कोस पाई आ गया, आयोटा इंटू इत्थे मेरे को कितना आ गया साइन पाई आ गया। सोल्व करोगे तो कितना आ जाऊगा कोस पाई प्लस आयोटा साइन, कोस पाई कितना हुंदा -1 हुंदा, साइन पाई कितना हुंदा 0, तो मतलब मेरे को कितना आंसर आ गया -1 आ गया। तो तुसी आप ही देख लो विच ऑप्शन इज राइट हियर, सी ऑप्शन इज राइट हियर, ठीक है जी। तो इस अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होना सी, मतलब सारा क्वेश्चन किहदे उपर बेस्ड है, इस प्रॉपर्टी के उपर बेस्ड है, तां ही आपां कह दिंदे कि प्रॉपर्टीज आपां नूं पता होणीआं चाहीदियां ने। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन तुसी देख ही रहे हो, ये की है, कहते कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 4 है एंड साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा की पावर 5 है। ये सारा कुछ कि इक्वल होगा। पहली गल ये की करो, थोड़ा बहुत इनू सॉल्व करना पऊगा, प्रॉपर्टी यूज करनी पैनियां, क्योंकि जेकर तुम सिंपल फॉर वे करोगे तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा लेंदी चला जाना है, ठीक है। तो आप की करते हैं, ये कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा दी पावर 4 है, बिल्कुल है। मैंने की किया नीचे वाले दे विचों आयोटा कॉमन कट लिया, ठीक है। जो आयोटा कॉमन कटोगे तो ऑब्वियसली आयोटा की पावर 5 बाहर आऊगी, ठीक है। इतने मेरे को कितना रह जाऊगा 1 अपॉन आयोटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा दी पावर 5, ये चीज़ बन गई, ठीक है। जो दूजे शब्दों में इन्ना कुछ करने की एक स्टैप ना करो, चलो है ना, पजल हो जाने आप, तो सिंपल बनाने के लिए पाई बाय 2 माइनस कर दो, पर पाई बाय 2 माइनस करने के लिए भी थोड़ा की चाहिए होएगा, आयोटा बाहर चाहिए होगा, है ना। सो आयोटा तो अपन कॉमन कढ़ना ही पेगा, सॉरी 1 अपॉन 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ताकि अपने को आयोटा जो है वो भी थोड़ा बैलेंस हो जाए, है ना। तो ये की कर दो, सीधा सीधा एंगल नू चेंज कर दो, ठीक है। मेरे को कितना बन जाएगा, मेरे को बन जाएगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा दी पावर 4 और डिनोमीनेटर दे विच आयोटा दी पावर 5 के इक्वल हुंदा है, आयोटा दे ही इक्वल हुंदा, ठीक है। हुण इस नूं तुसीं की लिख सकते हो, अगर मैं चाहां तां इस नूं लिख सकती हाँ कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक है जी, क्योंकि आयोटा 1 बाय आयोटा है, देखो 1 बाय आयोटा है, इसमें मैंने की लिख लिया आयोटा की पावर 4 अपॉन आयोटा, सॉल्व करके आयोटा क्यूब की इक्वल हुंदा माइनस, तो ये चीज़ मेरे को बन के आ गई। तो हुण जिवें कि आपने डी मॉर्गन थ्योरम की सी, ठीक है, उहदे विच आपां नूं पता सी कि जिहड़ा माइनस है उन्होंने थोड़ा बहुत एडजस्ट आपां नूं करना पऊगा। सो इस तो मैं की रिजल्ट बना सकती हाँ, तो मैं रिजल्ट बना सकती हाँ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर 4 डिवाइड बाय आयोटा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा दी पावर -5, मतलब माइनस अंदर चला गया तो उल्टा लगाता, डी मॉर्गन थ्योरम नूं उल्टा लगाता, ठीक है।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਪਾਵਰ ਉੱਪਰ ਜਾके ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪਾਵਰ ਉੱਪਰ ਜਾके ਹੋ ਜੂਗੀ 1 ਬਾਈ ਆਇਓਟਾ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਜਾके ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 9 ਹੋਗੀ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 9 ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡੀ ਮੋਰਗਨ ਥਿਊਰਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕੋਸ ਥੀਟਾ 9 ਥੀਟਾ ਪਲਸ ਆਇਓਟਾ ਸਾइन 9 ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓਟਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਇਓਟਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾइन 9 ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ ਕੋਸ 9 ਥੀਟਾ। ਸੋ ਟੋਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦ डी मॉर्गन थ्योरम, सारी की सारी डी मॉर्गन थ्योरम इतने यूज की हुई है। सो विच ऑप्शन इज राइट हेयर, डी ऑप्शन इज राइट हेयर, ठीक है जी। विच ऑप्शन इज राइट हेयर, डी ऑप्शन इज राइट हेयर। अगे चलते हाँ क्वेश्चन नंबर 68 के उपर। 68 जो क्वेश्चन है वो मैं Z दिता होया, इन्होंने पूछा है कहते रियल पार्ट इस दा 0 होगा, ठीक है, या फिर थोड़े सामने ने सारिया ऑप्शनस भी कि इमेजनरी पार्ट 0 होगा, सारा कुछ पूछा होया। ਹੁਣ क्योंकि ये थोड़ी जी पावर चली गई 5 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਪਾਵਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਵਾਂ ਕੋਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ π/2 ਆ ਜਾਵੇ, π/6 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है, प्लस आयोटा साइन की वैल्यू मैं सेम ही पुट करूँगी तो मेरे को π/6 इदा की वैल्यू है, जेकर मैं उन्होंने साइन के पुट करती हाँ तो मेरे को 1/2 आता है, एंड जेकर मैं उन्होंने कोस के पुट करती हाँ तो मेरे को √3/2 आता है। सो ये सारे की पावर कितनी होगी 5 होगी। क्लीयर। सिमिलरली बस ये की है माइनस है, चीज़ तो सारी सेम ही है, π/6 माइनस साइन π/6 की पावर 5 नाल आयोटा, सिंपल है, ठीक है। तो जिमें थोनों पता है कि डी मॉर्गन थ्योरम कहती है कि इनू लै जाओ अंदर, तो इदा तुसी क्वेश्चन के प्रॉपर्टी इस थ्योरम में यूज़ करना है ताकि थोड़े क्वेश्चन ईजीली हो सकन, ठीक है। प्लस इतने मेरे को हो जाएगा माइनस के भी याद करो आप लैके जा सकते, आप प्रॉपर्टीज पढ़िया सीगियां प्रॉपरली, दैन ये मेरे को हो जाएगा 5π/6 माइनस आयोटा इंटू साइन 5π/6। तो इन्हें तो आपस में हो जाना कैंसल, मतलब की हो गया ओनली इमेजनरी रियल पार्ट बच गया, डजन मैटर कितना बच गया, रियल पार्ट बच गया, मतलब इमेजनरी पार्ट की हो गया Z का 0 हो गया, दैन तुम कहोगे इमेजनरी पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगे देखो क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन की दिता होया है, कहते जेकर ये सोनू प्रॉपरली आह देख पा रहे हो तुम, कहते कि इक्वल होगा, यह चीज़ किस दे इक्वल होएगी, ठीक है। तो डी मॉर्गन थ्योरम आपां नूं की कहती है कि जेकर आपां कोस दे विच, हाँ जी 1 मिनट ओनली, चलो इत्थे डी मॉर्गन थ्योरम आपां लगा नहीं सकते क्योंकि इत्थे 1 भी पिया, अगर 1 भी पिया तो आपां डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, तो इत्थे आपां नूं ट्रिग्नोमैट्री अप्लाई करनी पऊगी। जस्ट इन्नी क जो चीज़ है ये अपने कोल है 1 + cos φ, और ये मेरे कोल किस दे कोल हुंदा है, ये मेरे कोल हुंदा है 2 cos स्क्वायर φ/2 दे कोल हुंदा है, और ये मेरे कोल कितना है sin φ है, और sin φ मेरे कोल किस दे कोल हुंदा है 2 sin φ/2 एंड cos φ/2 दे कोल हुंदा है। बस फिर इस फॉर्मेट नूं यूज़ करो तो सॉल्व करो, ठीक है। सो अपने कोल पहला तो की बन जाएगा, पहला बनेगा 2 cos स्क्वायर φ/2, ठीक है, प्लस आयोटा, ठीक है, 2 sin φ/2 cos φ/2, और डिनोमिनेटर दे विच की है, डिनोमिनेटर दे विच मेरे कोल है 2 cos स्क्वायर φ/2, ठीक है, cos स्क्वायर इतने मैंने cos लिखा है, एंड माइनस आयोटा 2 sin φ/2 डिवाइड एंड cos φ/2। तो जी चीज़ कॉमन निकलती है उन्होंने कॉमन निकल के कैंसल कर दो, मेरे को 2 भी कॉमन निकल रहा है, और मेरे को अगर गल की जाए cos भी कॉमन निकल रहा है, उन्होंने कॉमन कढ़ के मैंने कर दिता कैंसल, तो मेरे को कितना बच जाएगा cos φ/2 प्लस आयोटा sin φ/2, ठीक है जी। और डोंट फॉरगेट इस दी सारी दी पावर n है, ठीक है। डिनोमिनेटर दे विच कितना है cos φ/2 प्लस माइनस आयोटा sin φ/2, तो इसकी भी पावर कितनी है n है। हुण तुसीं इत्थे डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई कर सकते हो ईजीली, ठीक है। सो वही थोड़े को आ जाऊगा फिर सॉल्व होके ईजीली, ठीक है, क्योंकि इत्थे तुसीं डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई कर सकते हो आराम नाल। सो ये मेरे को कितना बन गया, इनू तुसीं ई दी पावर दे विच कन्वर्ट कर लो, थोड़ा जिहा ईजी हो जाऊगा, थोड़ा देखने दे विच ही डेंजरस लगी जाता है। सो ई दी पावर आयोटा φ/2 एंड ई दी पावर आयोटा माइनस φ/2, ठीक है। ऊपर जाके इन्हें पावर ने प्लस हो जाना, ई दी पावर आयोटा 5 बन जाऊगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसकी पावर अगे कितनी है n है, तो
ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਚ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਿਊਰਮ ਪੁੱਛ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਪਲਸ ਆਇਓਟਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਥਿਊਰਮ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਪਰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਪਲਸ ਆਇਓਟਾ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ, ਦੇਖੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਪਲਸ ਆਇਓਟਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋਗੀ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਵਾਂ ਸਾਈਨ ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਪਲਸ ਆਇਓਟਾ ਕੋਸ ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਪਲਸ ਆਇਓਟਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। नो डाउट। तो इनू मैं की लिख सकती हाँ, कोस सॉरी इतने कोस चेंज होके कोस ही बन जाऊगा और इतने चेंज होके साइन ही बन जाऊगा, ठीक है। सो ये मेरे को बन गया कोस पाई बाय 2, ठीक है। जो एन अगे आएगी तो एन नाल मल्टीप्लाई हो जाऊगा, दैन विच ऑप्शन इज राइट हेयर, सी ऑप्शन इज राइट हेयर, ठीक है जी। क्लीयर है, सिंपल जी गल है। तो उम्मीद है इस टॉपिक थोड़ा प्रॉपरली क्लीयर हो गया होगा कंपलैक्स नंबर के विच। एंड पूरी कोशिश की है मैंने एक बारी हर एक टॉपिक में ये कवर करने की। कॉन्जुगेट आप कर लिया, ज्योमैट्री आप कवर कर ली, डिमॉर्गन्स थ्योरम आप ये लैके आए हैं, है ना। मोस्टली मैंने सारिया चीज़ों कवर करने की कोशिश की है। और लास्ट जो 30 क्वेश्चन होंगे दैट अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कई बार मैं दस चुकी हूँ। सो एक क्लास रहेगी बस, फिर उस बाद अपना ये टॉपिक खत्म हो जाऊगा एंड दैट्स इट, ठीक है जी। थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जेकर क्लास पसंद आई तो शुक्रिया तो सबका।